I now request Professor Hevanti Rumi Ramkisoon, University of South Australia, to please grace the dais as our first speaker. Please put your hands together. Dr. Kanak Madrecha, Excellence Advisor and Global Peace Ambassador, Dubai, will join us online. May I now request Dr. Shada Verma, Director, CGHS, to please grace the dais as our next speaker. Dr. Suresh Babu, Professor, Shada Hospital, may I please request you to grace the dais. A round of applause, please. Dr. Ashok Kumar Das, Professor, Shada Hospital, to please grace the dais. Thank you so much. Dr. S.S. Gulati, Professor, Shada Hospital, to please grace the dais. I now begin the chairperson. I now request chairperson to begin with the proceedings. Actually, the theme of this particular session is, to see, to learn from what are the best practices about senior citizens happening in other developed nations. So, since the time is short, I'll cut on most of the things. Just get started. We have two speakers who are from outside the country and from developed nations. One to my right is Ms. Hevanti Rumi Ramkisoon. She is from Australia South University. Australia University, and she also belongs to Mauritius. So she has an experience of Mauritius, Australia, and also associated with the UK, where she is most of the time. So she has a wide experience, and we like to listen to her first. And after that, we have our friend Dr. Kanak Madrecha from Dubai. He is on his transit. Kanakji, please switch on your video. In the meantime, I'll request Rumiji for her intervention. Respected elderly, distinguished guests, Vimal Vakluji, Professor Vermaji, and others, Namaskar. I'm very honored to be here with you all this afternoon. Thank you very much for having invited me. I'm originally from the island of Mauritius, and I was born and brought up there, and then went for my further studies. I came to India actually for my bachelor's, and then went for further studies in the UK and Australia. So I have been working in the area of prosociality, whereby we work with people who are senior citizens, and the theme of this conference is hence very timely. So I just gave you some brief perspective of what the current state is in the UK, Australia, and Mauritius, and what kind of work we are trying to do to meet those challenges. So in the UK, we have an aging population with 11 million people above the age of 65. So we determined that there's one serious issue that elderlies are facing is that of loneliness. So interventions have to be designed to work towards how to mitigate those problems. And one intervention that we have been working on is to try to bring people together. And how do we do that? So community cohesion, but also try to bring the elderly people in nature-based settings. So if we bring people to nature, we think that nature has a lot of restorative effects. So in addition to research,
form some bonds, get together, and also go out in nature. And if they can't go out because of some specific needs, what can be done to bring nature to them? So that is something that we've been working on in terms of having environmental settings set up in communities, for example, and try to bring people more in touch with one another and try to get them more exposed to nature settings. In Australia, the biggest challenge that we seem to be facing among the elderly communities of migrant immigrants is that they tend to be socially even more isolated from others. And language can be a big barrier. Also, they don't have, despite being close to their children in the same country, the children are working, so they may not have enough time together. So that's another problem that the societies are facing. But despite the kids have got their parents with them, but they might not necessarily have that significant amount of time that could bring everyone together. So what can be done for these migrant communities? So having them get together among their own, like for example, you've got Bengali communities or South Indian communities, so different communities gather together and do some specific activities for them, as well as try to set up interventions that they mix up with other people in the nation. In Mauritius, there are some incentives that have been provided. People are put, for example, if they cannot attend to some banking or other things that are needed, so help is provided to them. So we can, the officers will go to them in their homes and try to help. Also, the senior citizens have access to some recreational activities that are organized on quite a frequent basis. So the government and NGOs together try to bring in some facilities to enable them to go for outdoor recreational activities at the beach, for example, or some community events. Unfortunately, however, we see that despite many people have their own houses, their own homes in Mauritius, there is a flourishing business of home care. So it means that a lot of people may have the resources, but then they have also, at some point, they are having to take the resource of home care. And one of the significant challenges is that these home cares are not always visited by the authorities. So we need the authorities to intervene at a pace that's like a very more frequent pace to allow for best practices. So ultimately I'd like to end up by saying context differ, so the interventions would not necessarily work across every single context. We just have to think about how do we bring about a mindset change? How can we work towards behavioral change? And how do stakeholders come together to make this change that we want to happen? And at the same time, we should not forget that the senior citizens, the elderly people, are a major stakeholder themselves, and they can teach us, and we can learn from them, and we can teach us as well in terms of digital innovation and other things that the new era is emerging. Thank you very much. Thank you, Dr. Hevanthi. Actually, the learning for us, in addition to what you already mentioned, from there is that, bring nature to them. That's a very important point of learning. Achha. Actually, there is a little change in the program. We also have we are combining another session with this session. There are two speakers, and I'll request them to come on the dais. Ms. Rajshri Rai, Editor-in-Chief of APN News, and poetry by Kavitri Sarita Sharma. Actually,
since they have to leave, so I'll request poetry by Kavitri. So since they are in a hurry to leave, so I'll request Kavitri Sarita Sharma ji to give her poetry. अच्छा लिखा है तो आप एड्रेस कीजिए, मतलब ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। हाँ हाँ, यहाँ से बोल दीजिए। आप सभी को नमस्कार, सम्मानित मंच को नमस्कार। और हिंदी की कवयित्री हूँ, हिंदी में ही बोलूँगी। आप सबको कोई परेशानी तो नहीं? शुक्रिया, धन्यवाद। इस ऑडिटोरियम में आई तो मुझे याद आने लगा कि यहाँ पर मैं कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ के लिए आ चुकी हूँ। और ये जो विषय है, आदरणीय मेरे बड़े भाई देवदत्त शर्मा जी बैठे हुए हैं मंच पर। ये विषय जब उन्होंने बताया, मैं बचती हूँ बहुत ज़्यादा कार्यक्रम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत यात्राएं होती हैं मंचों की, तो जहाँ कवि सम्मेलन ना हो तो मैं सोचती हूँ दाएं बाएं से निकल जाऊँ। लेकिन जब उन्होंने इस विषय को बताया मुझे, तो ये विषय मेरे मन के नज़दीक है। एक तो स्त्री विमर्श हमेशा मुझे आकर्षित करता है अगर उस पर बात करनी हो। क्यों? क्योंकि मैंने गांव से निकलकर ज़मीन से जुड़ी ज़िंदगी देखी है, और मैं कहीं से पढ़ सुनकर नहीं अपनी ज़िंदगी से बात करती हूँ। और मैंने एक चीज़ पिछले दिनों हुई कि सीनियर सिटीजन होने के करीब पहुँचने से बहुत पहले वो सुविधाएं कई छिन गई सीनियर सिटीजन से, जो मुझे भविष्य में मिलने वाली थी। तो मैंने खुद को बड़ा वंचित सा महसूस किया कि अरे ये हमारे आने से पहले ये गेट बंद हो गए, सुविधाएं बंद हो गई। तो खैर बहुत कुछ बोला जा सकता है, और सबने बड़ी अच्छी बातें निश्चित रूप से सुबह से की होंगी, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि सभी बड़े ज्ञानी, जानकार, अध्ययन किए हुए लोग हैं। मैं ज़िंदगी से जुड़ी बात करना चाहती हूँ, और जो भावनात्मक पक्ष है इसका, वरिष्ठ नागरिकों की ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं, वो जो भावनात्मक पक्ष है, उसको आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटा समय लूँगी, भाई आ गया है ना। तो एक छोटी सी कहानी से शुरू करती हूँ। ये कहानी ये है कि एक माँ के 5 बेटे थे, और वो पांचों जब छोटे थे तो बहुत लड़ाई होती थी उनमें हर दिन। और लड़ाई इस बात की होती थी कि हर बच्चा कहता था कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब वो बच्चे बड़े हुए तब भी उनमें लड़ाई होती रही, लगातार लड़ाइयाँ होती थीं, लेकिन लड़ाई का वाक्य इस बार ये होता था कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये बड़ी ये अपने आप में ये कहानी पूरी बात को कहने के लिए पर्याप्त है। तो इसके आगे बहुत लंबा विस्तार दूँ, उसकी बहुत ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं कहना एक बात ज़रूर चाहती हूँ। वरिष्ठ लोग सब जानते हैं, सबसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने कल 4 पंक्तियाँ लिखी थी इसी बात पर कि रहें कैसे दिखें कैसे वही सब कुछ दिखाता है। रहें कैसे दिखें कैसे वही सब कुछ दिखाता है, नई पीढ़ी को अब हर बात बस गूगल बताता है। रहें कैसे दिखें कैसे वही सब कुछ सिखाता है, नई पीढ़ी को अब हर बात बस गूगल बताता है। मगर गूगल अटक जाए जहाँ कुछ काम ना आए, मगर गूगल अटक जाए जहाँ कुछ काम ना आए, वहाँ घर के बुजुर्गों का तजुर्बा काम आता है। घर के बुजुर्गों का तजुर्बा का फ़ायदा उठाना बंद हो गया है। जो केमिस्ट्री हमारे माता पिता के साथ होती थी, वो केमिस्ट्री पूरी तरह से बदल गई है। मैं एक ऐसे घर की बेटी हूँ जहाँ गांव में जब खाना बनता था तो सबसे पहले जतन से मेरे दादाजी की थाली लगाई जाती थी। घर की सारी बहुएं, बेटियाँ या दादी हमारी सब देखती थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। और धीरे धीरे मैंने उन स्थितियों को ऐसे बदलते हुए देखा कि घर में जो सबसे नन्हा मेहमान आता है, पूरे घर की दिनचर्या, पूरे घर का जीवन उस नन्हे मेहमान के इर्द गिर्द होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले 7, 8, 10, 12 बच्चे होते थे, अब 1 या 2 होते हैं।
तो वो ज़्यादा मूल्यवान लगते हैं, उनकी परवरिश करना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें जो बदली वो अच्छे के लिए नहीं बदली। मैंने अपनी ससुराल में दादी सास को बहुत दिनों तक चाचा जी और पिताजी की सेवाएं लेते हुए और जाते हुए धीरे धीरे देखा है। नलियों से, सुइयों से बिंधे हुए शरीर जब आईसीयू में पड़े पड़े दम तोड़ देते हैं और उन्हें अपना कोई दिखाई नहीं देता जिस समय वो जा रहे होते हैं दुनिया से, तो ये मुझे बहुत ही त्रासद लगता है, बहुत ही दुखद लगता है। कुछ नहीं होना है, केवल उन्हें कष्ट मिलना है इस सब से। तो परिस्थितियाँ बहुत बदल गईं। वहीं आऊँगी कि जहाँ मैं कहती हूँ कि हमारी जो केमिस्ट्री थी वो केमिस्ट्री बिल्कुल 360 घूम गई है, बिल्कुल बदल गई है। हमारे व्यवहार में एक लिहाज होता था, एक हल्की सी थोड़ी सी दूरी भी होती थी। हमारे पिता जब घर आते थे तो हम पांचों बहनें जल्दी जल्दी कोई ना कोई काम करने, कोई पढ़ने बैठ जाती थी, कोई घर ठीक करने लगती थी, कोई कुछ करने लगी, एक पानी लेके आती थी, कोई ये स्थिति थी। लेकिन अब ऐसा मैं नहीं जानती कितने घरों में होगा। यहाँ आप सब बैठे हैं, आप सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो अनवांटेड फीलिंग जो वरिष्ठ नागरिकों को मिल रही है। मेरे पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनकी डेथ हो गई और काफ़ी दिनों से उस घर की दिनचर्या में जो एक बासीपन था, एक जो ठहराव था, एक जो धीमी गति से चल रहा था, वो सब बदल गया। 1-2 महीने बाद उन लोगों ने घर का रेनोवेशन कराया, टूर पर घूमने गए। मैं ये नहीं कह रही कि वो खुश हुए, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ज़िंदगी पटरी पर आ गई। मुझे क्षमा कीजिएगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है जो मैंने देखी हुई है, झेली हुई है। निस्वार्थ समर्पण को कमज़ोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, इनके मन की किताब को कोरी मत समझो। इनके मन में बहुत कुछ है। आप लोग बाहरी व्यवस्थाएं बनाएंगे, उनकी आर्थिक स्वास्थ्य की जो दिक्कतें हैं या आर्थिक समस्याएं हैं या प्रोटेक्शन की जो बात है, सुरक्षा की बात है, अपनों से ही प्रताड़ित होने पर, ये सारी समस्याएं आप लोग सुलझाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम लोग थोड़े से उनके मन की भी कदर करना सीखें। हम लोग थोड़ा सा उनके मन में, मैं भी अब आ रही हूँ उसी में, और मैं आयु नहीं बताऊँगी लेकिन बहुत दूर नहीं हूँ, उसी में शामिल हूँ लगभग। तो बस इतना कहती हूँ कि हमारे मन की भी थोड़ी सी परवाह की जाए, हमारी भावनाओं को क्योंकि सबको जाना है। मैं एक आश्चर्य मुझे होता है कि हम जब छोटे थे तो हम कई बार माँ दादी का हाथ ऐसे पकड़ते थे, उस पर झुर्रियाँ पड़ती थी, तो हम सोचते थे, हम पूछते थे, दादी हमारा हाथ ऐसा कब हो जाएगा? तो हमें तब भी मालूम था कि हमें भी वहीं आना है जहाँ ये हैं। लेकिन अब बच्चे और यंग इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे वो सदा ऐसे ही रहेंगे, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। कुछ ऐसा चलाया जाए, कोई ऐसा अभियान हो, कोई ऐसा मिशन हो जिसमें स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाकर बच्चों को हम बता नहीं सकें, बताया तो गूगल पे बहुत जा रहा है, लेकिन हम उन्हें एहसास करा सकें किसी तरीके से कि ये जो तुम्हारे बड़े हैं ये बहुत कीमती हैं और तुम्हें भी एक दिन इसी स्थिति में पहुंचना है। आज तुम जो इनके साथ करोगे, कल उससे ज़्यादा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। हो सकता है कि आपके विषय के अनुरूप मेरा बोलना न रहा हो, लेकिन जो मेरे मन में था वही मैंने बोला। एक बात और बोलूँगी ज़रूर, जो मेरे परिवार में, आसपास रिश्तेदारियों में है कि पति पत्नी दोनों कमाते हैं, आजकल दोनों नौकरी करते हैं, काम करते हैं, और बुज़ुर्ग पीछे रह जाते हैं घर में बच्चों की देखभाल के लिए या और कामों के लिए, और जब वो उस काम के काबिल नहीं रहते तो वो बोझ लगने लगते हैं। मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी भैया कि मोहब्बत, प्यार, चाहत या वफा कुछ भी नहीं होता। मोहब्बत, प्यार, चाहत या वफा कुछ भी नहीं होता, न एहसासात होते तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। और गरीबी देखकर उनकी बड़ी तकलीफ होती है कि जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं होता। गरीबी देखकर उनकी बड़ी तकलीफ होती है कि जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता होता। उतना कठिन नहीं है जीवन जितना कठिन बना रखा है। पता नहीं कौन सी दौड़ में हम सब अंधे होकर केवल पैसा, केवल मटेरियलिस्टिक दुनिया हमें दिख रही है। हम भूल गए हैं अपने भीतर की दुनिया को, मन की दुनिया को। वो आनंद, उत्सव, वो सब कुछ भी नहीं रहा, सब दिखावा हो गया। क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत ही सपाट बोल रही हूँ, लेकिन यही मेरे मन की सच्चाई है। मैंने कहा था, एक मेरे मित्र हैं कवि
उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है, उनकी पंक्तियों के साथ मैं समापन करूंगी अपने वक्तव्य का, कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। दिनेश रघुवंशी की पंक्तियां हैं। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबां से कुछ कहूँ कैसे कहूँ किससे कहूँ माँ हूँ, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। और सुलाकर जिसको सोती थी, मेरी माँ कक्षा 1 के बाद स्कूल नहीं गई थी कभी, लेकिन हमें अक्षर ज्ञान उन्होंने ही कराया, अंग्रेजी का, हिंदी का, गणित में सिखाया सब कुछ। तो सुलाकर जिसको सोती थी वो अब शब्भर जगाता है, सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं, सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। हम लोग ये ज़मीन से जुड़ी सारी बातें हैं, ये सब ज़्यादातर परिवारों में, ज़्यादातर घरों में हो रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको कोई बात मेरी याद रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कविता जी, बहुत सुंदर। और आपसे विनती है कि आप ये जरा हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, जरूर। दोनों कविताएं। अब हम राजश्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, APN न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ, आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार आप सबों को, और मंच पर आसीन उन तमाम लोगों को जिनकी कोशिश की वजह से आज मैं आप सबों के सामने हूँ। और जो सविता जी ने जो बात शुरू की थी, वो बात उन्होंने समाज की कही, और समाज का आईना यदि कोई होता है तो मीडिया होती है, और मैं उस आईने की एक सिपाही हूँ। सिपाही कहने से पहले मैं शायद बहुत ईमानदारी से पूरी मीडिया की तरफ से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं उन सभी बुज़ुर्गों की जो हमारे लिए जिन्होंने हमारे लिए नई भविष्य की ताबीर सोची थी, उन सभी की गुनहगार भी हूँ। गुनहगार इसलिए कि अगर मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करूँ तो आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जो सबसे बड़ा है किसी भी तरह के, चाहे टेलीविज़न की बात करें या सोशल मीडिया पर, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन बुज़ुर्ग करते हैं। सबसे ज़्यादा वक्त टेलीविज़न देखने का वो देते हैं, सबसे ज़्यादा वक्त यूट्यूब पर वही देखते हैं, अलग अलग जो जी चीज़ छोटी छोटी रील्स आए या फिर जितने भी तरह के मीडिया प्रस्तुत की जाती हैं। पर अगर इन सभी जगहों पर जो लापता है वो बुज़ुर्ग ही है। चूँकि मैं एक मीडिया से हूँ और मेरा ख़ुद का एक चैनल है और मेरी तरह से कई और लोगों के भी चैनल हैं, हम सभी इस बात को भूल जाते हैं कि जो मेरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है उसके लिए 24 घंटे में मैं कितना वक्त उसको दिखाती हूँ या दिखाता हूँ, और इसलिए शायद मैं गुनहगार हूँ। पर मेरा गुनाह कुछ इसलिए कम है क्योंकि हमारे चैनल पर हम लोगों ने कोशिश ज़रूर की कि उन सभी लोगों को दिखाया जाए और उन सभी की बात रखी जाए, इसलिए हमने अलग से शोज़ प्लान किए। अब TRP का झंझट ऐसा होता है कि उस चक्कर में हमें राखी सावंत ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो व्यक्ति जो जिसने हमें सिखाया कि भाई के कलाई पर राखी बांधनी चाहिए और देश के लिए अपना जी जान दे देना चाहिए, वो हमें बड़ा दूर का बूढ़ा सा, बुज़ुर्ग सा और एक ऐसा व्यक्ति जो शायद मुझे खुलकर बोले नहीं कि तुम्हारी TRP में मैं भी अपना हिस्सा दे रहा हूँ। अब मैं ये सारी सच्चाइयाँ हैं जो कि सविता जी भी बता रही थी कि हमारे घर में मेरे भी माँ बाप हैं, हम सभी के माँ बाप हैं, और हम सभी दौड़ में कुछ यूँ आगे निकल जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि जिस सपने को जीने के लिए आज हम आगे बढ़ रहे हैं, उस सपने को हमारी आँखों में डालने वाले हमारे माँ बाप थे। मैं इस मंच को ये सारी सच्चाइयाँ रखने से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि हम लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम ये रोना तो रो सकते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमें इस बात पर नब्ज़ रखने की, इस बात पर इस नब्ज़ को पकड़ने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों नहीं हुआ।
और क्यों का अगर हम हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, मैं बहुत वक्त नहीं लूँगी, बहुत तरह के और मेहमान आपके सामने आ रहे हैं, तो क्यों का अगर हम ढूंढेंगे इस सवाल का जवाब, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का एक मंच, शायद एक इस तरह का संगठन इस क्यों का जवाब दे सकता है। और इस जवाब देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस विमर्श को, हम अपने हक को लेने की कोशिश करना शुरू करें और इस विमर्श को शुरू करें कि वो लोग जो कि हमें नैरेटिव देते रहे हैं आज तक, उस नैरेटिव में हमारा हिस्सा भी हो। हम पीछे चलने के बजाय आगे आने की कोशिश करें और उसके लिए मैं ये मानती हूँ कि चाहे वो पब्लिक हो या पुलिस हो, उन सभी जगहों पर अपनी अपनी बात रखने के लिए आगे आपको आना पड़ेगा। और जिसको एक मशहूर गाना है कि साडा हक इत्थे रख, तो अपना हक रखना अगर है तो जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। और ये जो शर्म होती है कि बेटे की शिकायत कैसे कर दूँ, बेटी की शिकायत कैसे कर दूँ, अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप नहीं बोलेंगे, ये जुल्म अगर आप खुद पर झेल रहे हैं तो ये जुल्म आप समाज को झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं एक नारी हूँ इसलिए और भी बताती हूँ कि आमतौर पर हम स्त्रियाँ हर तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस हो या तमाम तरह के जुल्म झेलती रही हैं, और इसका असर ये रहा कि साल दर साल हम झेलती रहीं। आज हम स्त्रियों की स्थिति में और बुज़ुर्गों की स्थिति में कुछ ख़ास अंतर नहीं है। अगर आपने भी झेलना शुरू किया, आवाज़ उठानी शुरू नहीं की, तो ये दौर ख़त्म होने वाला नहीं है। हम बदतमीज़ से ज़्यादा बदतमीज़ होने वाले हैं। तो आज के दौर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे मीडिया हो, इस तरह के कार्यक्रम तो ज़रूर इसके लिए सहयोगी रहेंगे। इसके साथ साथ दूसरा एक जो मुझे लगता है, एक सजेशन मैं देना चाहूँगी, चूँकि मीडिया से हूँ इसलिए, आज की तारीख में ये ताकत आपके हाथ में है। आप अपनी आवाज़ खुद बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं अखबार हूँ तो मैं आपके बारे में लिखूँ, या मैं मीडिया हूँ तो दिखाऊँ। ये जो फ़ोन आप यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी से जितना ज़्यादा आप जुड़े रहेंगे, अपनी बात, अपना यूट्यूब, अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, आप लाइव जा सकते हैं। घर में अगर बहू ने रोटी नहीं दी, आइए ना लाइव, कहिए कि मुझे रोटी नहीं मिली। अगर बगल में कोई पड़ोसी तंग कर रहा है किसी को, आप पार्क में जाते हैं और आप मिल रहे हैं किसी से, अगर कोई तंग कर रहा है किसी भी अपने दोस्त को, तो चुप क्यों रहना है? कोई और तो आवाज़ उठाए। अगर हम आवाज़ उठाना शुरू करेंगे कि ये ताकत आपके पास है, ख़त्म हो ही नहीं सकती, आवाज़ जाएगी ही जाएगी। ये सारा समाज जानेगा और उसके बाद ठीक है, एक दो बार हो सकता है कि थोड़ी आपको बुरी बात लगे, लेकिन धीरे धीरे ये माहौल चेंज होगा। जब हमारे पास वो ख़बर आती है, जब किसी माँ को घर से निकाल दिया जाता है, एक्चुअली उसमें TRP होता है, हम खूब उसको दिखाते हैं। और लेकिन अगर ये बात खुद आप रखना शुरू करें, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, फिर भी अगर इस संस्था को ज़रूरत पड़े किसी तरह की मदद की, किसी तरह की सोशल मीडिया ट्रेनिंग की या डिजिटल मीडिया ट्रेनिंग की, हम लोग खड़े हैं, हम लोग करने के लिए तैयार हैं, और ताकि आप अपनी ताकत खुद बन सकें। अभी तक मैं देख रही थी कि पब्लिक पुलिस फाउंडेशन का कोई एक्टिव ट्विटर हैंडल नहीं है, फेसबुक का बहुत ज़्यादा उस पर कुछ काम नहीं किया गया है, इंस्टाग्राम पे नहीं है। अगर आप इस पर नहीं रहेंगे तो आप कैसे बताएंगे आने वाली पीढ़ी को कि आप सम्मान करो हमारा? आपको अगर उनको कुछ भी समझाना है, नई पीढ़ी को समझाना है, तो उनकी भाषा में ही समझानी पड़ेगी, और वो उसी भाषा को समझते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये ताकत है हमें मिली हुई, और नहीं तो हम लोग बस कुछ यूं ही शेर पढ़कर और ये समझकर कि अरे उसका दुखा मुझे भी ऐसा ही होता है, हल नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं समझ रही हूँ कि जिसको एक बहुत मशहूर शेर है कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। अगर इनकलाब ये लाना है तो इस इनकलाब की जिम्मेदारी केवल आप ये कहकर नहीं झाड़ सकते कि मीडिया वाले नहीं दिखाते। ये जिम्मेदारी आपकी है, और इस तरह का अगर संगठन आप लोगों ने बनाया है तो इस संगठन को आज के हिसाब से चलाना, आज के हिसाब से जोड़ना, हर एक तबके से जोड़ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस पर भी काम करें। हाँ, उस काम को करने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी, मैं एक मीडिया के कर्मी होने के नाते और
मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक फाउंडेशन है, इंडिया लीगल फाउंडेशन भी, जो फ्री लीगल एड करता है। उसमें लगभग 28,000 वकील जुड़े हुए हैं और उन तमाम लोगों को हम लोग सुविधाएं देते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबसे ज़्यादा केसेस जो हमारे पास आते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस, हम ये उम्मीद करते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस बुज़ुर्गों के आते हैं। उनको हेल्प देने वाला कोई नहीं होता। तो अब अगर हम लोग जितना ज़्यादा टेक सैवी जितना होंगे, उतना शायद हम अपनी समस्याओं का हल कर पाएंगे और तब शायद अपना हक भी मान पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि एक मशहूर शेर मुझे याद आता है, उसके साथ अपनी बात मैं ख़त्म करूँगी कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उनके होने से बख्त होते हैं। बख्त मतलब सौभाग्य। उनके होने से बख्त होते हैं, बुज़ुर्ग घर के दरख्त होते हैं। अगर ये इस दरख्त की रखवाली ज़रूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ें, कहें, लेकिन उन आने वाली पीढ़ियों को उनकी भाषा में समझाएं कि हम उनके लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर कम्युनिकेशन गैप को हमने बनाए रखा और बढ़ाना शुरू कर दिया तो बस हम कुछ ही लोग के साथ मिलकर एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, बदलाव नहीं होगा। बदलाव के लिए इनकलाब ज़रूरी है और इस इनकलाब की का सूत्र जो डालेंगे आप लोग डालेंगे, और इसी उम्मीद में कि उस सूत्र को जो मेरे अंदर भी आप लोगों ने डाला है, देवदत्त जी और तमाम लोगों ने जो मुझे बोला था, मैं समझ रही थी कि मैं क्या बोलूँगी उस माहौल में, क्योंकि मैं एक अपराध भी महसूस कर रही थी, अपराध बोध भी था कि मैंने तो खुद ही बहुत कुछ नहीं दिखाया है बुज़ुर्गों पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। और जो आपने बताया मुझे, जो मैं एक राह के साथ आगे बढ़ रही हूँ, इसको थोड़ा आप लोग खुद भी मेहनत करेंगे, जिसमें भी जो सहयोग करूं, रास्ता तो दीजिए कि कहाँ सहयोग करूं। केवल इस बात पे अगर रोऊं कि आपके साथ बहुत जुल्म होता है या बुज़ुर्गों के साथ बहुत जुल्म होता है, बदलेगा क्या? अगर बदलना है तो आप आगे बढ़िए, मैं भी आगे बढ़ती हूँ, मिलकर कुछ नया करते हैं, कुछ नया बदलते हैं, देखते हैं कि तस्वीर कैसे नहीं बदलती है, देखते हैं कि हक कैसे नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद राजवीर जी। तो वो मिलकर हम कुछ करेंगे साथ में मिलकर पब्लिक पुलिस हो। तो अब ये वी आर सस्पेंडिंग दिस सेशन फॉर द प्रेजेंट एंड देयर इज एन अनाउंसमेंट टू बी मेड। Yeah, good afternoon. We are starting the award function to the police because the Mrs. Lakshmi Singh, she is coming and she says that she has very little time, and also chairman sir are also very busy. So we start award function. So may I request Honorable Vice Pro-Chancellor and Chairman sir to come on to the stage and kindly start calling the awardees. Thank you.